So now as we are clear with the Google form and after discussing it, now let us now start with our topic. So we are already done with one of the operators and now we are moving towards our next operator, which is logical operator. As from the name itself, it is clear that it is logical. Alright, logical means it will be checking some of the values of the operands, and after checking values of the operands it will decide the output as true or false. In logical operators, always the output will be in true or in false. ठीक है. So as it was in the relational operator, जो relational operators देखे थे हमने, arithmetic and other operators, plus operator, greater than operator, less than operator, greater than or equal to operator, less than or equal to operator, there also our answer seems to be coming in either true or in false. Same is the case with this logical operator. Answer will always come in true or false. Alright, it will check some logic, and after checking the logic of the program, after checking the logic of the operands, it will decide the answer to be in true or in false. So before starting with it, they are explaining us a one truth testing table. Under this truth testing table, we can see that they have given when the value will be coming as false and when the value will come to be true. यहाँ पर इन्होंने बताया कि कब वैल्यू ट्रू आएगी और कब वैल्यू फॉल्स आएगी. जब नन वैल्यू लिखी हो, खाली हो, तो फॉल्स आएगी. फॉल्स लिखा है तो फॉल्स ही आएगी. ज़ीरो है अगर कहीं पर लिखा हुआ तो भी फॉल्स आएगी. कोई एम्प्टी वैल्यू लिखी हुई है तो भी आंसर फॉल्स आएगा, है ना. और कुछ सीक्वेंस है, कुछ मैपिंग है जो कि खाली है, तब भी आंसर फॉल्स आएगा. तो ट्रू कब आएगा? सो ऑल अदर वैल्यूज अदर देन दिस, तो उसका आंसर क्या आने वाला है? उसका आंसर ट्रू आने वाला है. अभी इस चीज़ को हम समझते हैं डिटेल में. अभी बस इतना समझो कि आंसर ट्रू और फॉल्स में ही आने वाला है. नाउ in logical operators we are provided with three major logical operators. The first one is or, the second one is and the third one is not. These are the three operators that we would be seeing. These three operators will be coming to you as well in your physics subject in terms in terminology of gates, or gate, and gate, not gate. आगे आएगा. आप जो साइंस वाले हो उन लोगों को फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा ऐसा कुछ कंसेप्ट. बट राइट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर लॉजिकल ऑपरेटर्स टॉपिक इन पाइथन. यहाँ पर भी हमारे पास तीन मेजर लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं. वो कौन कौन से हैं? तो पहला लॉजिकल ऑपरेटर है और, दूसरा है एंड, और तीसरा है नॉट. सो वी आर हियर विथ थ्री ऑपरेटर्स. एज फ्रॉम द नेम इट सेल्फ इट इज क्लियर टू अस कि ये क्या करते होंगे. जैसे कि इफ आई विल टॉक अबाउट और, है ना. और का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या बोल सकते हैं? या, है ना. हिंदी में बोल सकते हैं या. जैसे कि ए और बी, या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है ना. और का मतलब यही होता है. और मीन्स एन ऑप्शन, है ना. और का मतलब हम क्या समझते हैं कि और इज अ ऑप्शन, मीन्स आइदर दिस विल बी आंसर आइदर और आइदर दिस विल बी द आंसर. सो वी हैव एन ऑप्शन. सो और मीन्स option, means you have to select from either this or this, and any one of that will be true, and it will be dependent on the operator that will be used at this place. इस ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है. चलो तो थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं. द और ऑपरेटर इवेलुएट्स टू ट्रू if either of its relational operands evaluates to true, and false if both operands evaluates to false. अब ये देखो यहाँ पर इनका कहने का मतलब क्या है कि जो और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर का आंसर ट्रू आता है कब? जब आपके पास जैसे दो ऑपरेंड है ए और बी, ठीक है, और ये आपका और ऑपरेटर है. आपके पास दो ऑपरेंड्स है और देखो, ठीक है, आपके पास दो ऑपरेंड्स है ए और बी. इसका आंसर आया फॉल्स, मैं लिख रहा हूँ ज़ीरो. इसका आंसर आया ट्रू. तो यहाँ पर क्या हुआ? इफ़ आइदर, यहाँ पर अब पढ़ो इसको, द और ऑपरेटर इवेलुएट्स टू ट्रू इफ आइदर ऑफ इट्स रिलेशनल ऑपरेंड्स इवेलुएट्स टू ट्रू. अब दोनों में से कोई एक ट्रू है तो और ऑपरेटर का आंसर क्या आएगा? और ऑपरेटर का आंसर भी ट्रू आएगा. ठीक है. नाउ if the values of A and values of B
value of a and value of b both are the both values are false. So if none of the value is true, so answer will definitely be false, so it will be 0. If both the values are true, so then also it will be 1. All right, and if it is 1 or 0, then also it will be 1, because one of the value is true. So in this way we can understand that OR operator results to true if either of the operand is true. दोनों ऑपरेंड में से अगर कोई भी ऑपरेंड ट्रू है तो आपका जो और ऑपरेटर होता है दैट विल प्रोड्यूस द आंसर एज ट्रू. जैसे कि हम यहां पर एक इन्होंने टेबल भी बताया हुआ है, वी कैन सी दिस टेबल एंड अंडरस्टैंड. देखो, जस्ट गो थ्रू दिस टेबल एंड अंडरस्टैंड. दिस इज द टेबल फॉर अस. If both the values are false, the answer is definitely false because none of the value is true and it will be false. False true it will be true, true false it will be true, true true it will be true. ठीक है, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ. एक कि रमेश है और सुरेश है. ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि भैया रमेश या सुरेश. ठीक है, समझना बात को थोड़ा सा. रमेश या सुरेश, एक मिनट. हाँ, ठीक है, रमेश या सुरेश में से अगर कोई एक भी आया तो मैं पढ़ाऊंगा, ये मैंने बोला. बीच में क्या लगाया? और. इफ फ्रॉम रमेश और सुरेश इफ एनीबडी कम्स आई विल टीच. तो यहां पर देखो, इसको हम मानते हैं ये जो x है, x है रमेश और y है सुरेश. अब समझो इसको, यहाँ पर अब इसको समझो कि यहाँ पर रमेश नहीं आया, सुरेश भी नहीं आया. जब दोनों ही नहीं आए तो पढ़ाओगे क्या? नहीं पढ़ाओगे, किसी को नहीं पढ़ाओगे. रमेश नहीं आया, सुरेश आ गया, तो हाँ भैया कोई भी एक आया तो पढ़ाएंगे. रमेश आ गया, सुरेश नहीं आया, हाँ पढ़ाएंगे. रमेश भी आया, सुरेश भी आया, जब दोनों ही आए हैं फिर तो पढ़ाना ही है कि नहीं? तो यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस लॉजिक कि यहाँ पर हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं. रमेश और सुरेश, ठीक है, आर और एस. तो रमेश और सुरेश में से अगर कोई एक भी आएगा तो हम पढ़ाएंगे. दिस वॉज द लॉजिक फॉर और ऑपरेटर. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट एंड ऑपरेटर. अब एंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो एंड को हिंदी में बोलते हैं और मतलब ये वाला और. ठीक है, तो ये एंड का मतलब होता है और. अब क्या हो जाएगा लॉजिक? रमेश और सुरेश दो लोग हैं, है ना. अब मैं क्या ऑपरेटर लगा रहा हूं? एंड ऑपरेटर लगा रहा हूं. तो अब समझो, एंड का मतलब क्या होता है? रमेश और सुरेश दोनों का आना जरूरी है. एंड ऑपरेटर मतलब क्या होता है? रमेश एंड सुरेश, मतलब मैं दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों का होना जरूरी है. जब दोनों होंगे तभी पढ़ाऊंगा, कोई एक भी होगा तो नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि और यहां पर एंड ऑपरेटर लगाया है मैंने. एंड ऑपरेटर मीन्स दैट देयर प्रेजेंस हैज टू बी देयर. लेट अस नाउ सी दिस एंड ऑपरेटर विथ टेबल. सी दिस इज अवर एंड ऑपरेटर along with the table as you can see over here. रमेश नहीं आया, सुरेश नहीं आया, दोनों ही नहीं आए, पढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता. रमेश नहीं आया, सुरेश आया, हमने बोला है एंड ऑपरेटर. एंड ऑपरेटर हमारा बोलता क्या है? दोनों का होना ज़रूरी है. रमेश नहीं आया, सुरेश आ गया, पढ़ाना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. रमेश आ गया, सुरेश नहीं आया, नहीं पढ़ाना, फॉल्स. रमेश भी आया, सुरेश भी आया, हाँ हम पढ़ाएंगे. ठीक है, तो आंसर आएगा ट्रू. तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है? दोनों का प्रेजेंस होना ज़रूरी होता है ना. और ऑपरेटर में क्या होता है? कोई एक भी आता है तो हम पढ़ा देते. तो इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हो, जस्ट अबव दिस द डेफिनेशन इज रिटन. इसको देखते हैं. द एंड ऑपरेटर इवेलुएट्स टू ट्रू इफ बोथ ऑफ इट्स रिलेशनल ऑपरेंड्स इवेलुएट्स टू ट्रू, है ना. जब दोनों के दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होते हैं तभी जाकर हमारा एंड ऑपरेटर का आंसर ट्रू होता है. अदरवाइज आंसर कम्स टू फॉल्स, है ना. मतलब दोनों अगर ट्रू हैं तभी आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज द आंसर विल बी फॉल्स. ये दोनों की डेफिनेशन हमको अभी क्लियर हो गई कि भैया एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर क्या होता है.
Now let us now see with some of the examples of and or. अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. चलो ये देखो, पहला एग्जाम्पल ये रहा. 4 इज इक्वल्स टू 4 और 5 इज इक्वल्स टू 8. चलो, 4 4 के बराबर है. 4 इज इक्वल्स टू 4, वो पूछ रहा है, यहाँ पर डबल ऑपरेटर लगा है तो वो पूछ रहा है क्या 4 4 के बराबर है. आपने बोला हाँ है. अगला बोला है 5 इज इक्वल्स टू 8, क्या 5 8 के बराबर है. आपने बोला फॉल्स. ठीक, तो आंसर क्या है आपके, एक का आया ट्रू और एक का आया फॉल्स. और हम क्या बोलते हैं, रमेश आया सुरेश नहीं आया, बीच में क्या लगा हुआ है और, तो हम पढ़ाएंगे. हाँ हम पढ़ाएंगे. तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर इट विल इवेलुएट टू ट्रू. 5 इज ग्रेटर देन 8, नहीं 5 8 से बड़ा नहीं है तो हमारा आंसर आया फॉल्स. 5 इज लेस देन 2, तो यहाँ पर भी हमारा 5 जो है वो 2 से छोटा है क्या, नहीं है, दोनों तरफ फॉल्स आया, बीच में लगा है और ऑपरेटर. जब दोनों ही नहीं आए तो किसी को पढ़ाएंगे क्या, नहीं पढ़ाएंगे. सो आंसर इज फॉल्स. क्लियर. इस तरीके से हमको यहाँ पर इसको समझना है. अब देखते हैं एंड ऑपरेटर के कुछ एग्जांपल्स. ये देखो, सेम एग्जांपल एंड ऑपरेटर के साथ भी दिए हुए हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं. 4 इज इक्वल्स टू 4, आंसर क्या आया, ट्रू. बीच में लगा है एंड ऑपरेटर. 5 इज इक्वल्स टू 8, आंसर आया फॉल्स. एंड ऑपरेटर लगा है तो एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, रमेश तो आया सुरेश नहीं आया, पढ़ाएंगे क्या, नहीं, आंसर आया फॉल्स. सो द ओवरऑल आंसर विल बी फॉल्स. अगला 5 इज ग्रेटर देन 8, हाँ नहीं नहीं नहीं, 5 छोटा है 8 से, मतलब इसका आंसर क्या आया हमारा, फॉल्स आया. और 5 इज लेस देन 2, ये भी गलत है, 5 तो बड़ा होता है छोटा नहीं होता. तो यहाँ पर F और बीच में एंड ऑपरेटर लगा है और फिर F, जब दोनों फॉल्स आए तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर भी तो फॉल्स आएगा. तो आंसर आ गया फॉल्स. थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. 8 इज ग्रेटर देन 5, हाँ भैया, आवर आंसर इज ट्रू. 2 इज लेस देन 5, हाँ हमारा आंसर इज ट्रू. दोनों आए, रमेश भी आया सुरेश भी आया, हाँ हम पढ़ाएंगे, तो आंसर विल बी ट्रू. So these are some operators, these are some logical operators that can be used for performing some logical expressions. So these two operators should be known to us. हमको पता होना चाहिए कब आंसर ट्रू आएगा, कब आंसर फॉल्स आएगा. और कुछ एग्जांपल्स और जब आगे आएंगे तो हमको ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी. ठीक है. सो इट्स ऑलरेडी 10. नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी विल डू, we will go through our next topic, which is the or operator, not operator. This is the third and last operator in this category, and after that there are some more questions which are given to us, some more topics, basic topics which are given to us, that we will be finishing in 2 or 3 classes. ठीक है, अभी हमने 3 मेजर ऑपरेटर्स देख लिए ना. अब उसके बाद कुछ और भी ऑपरेटर्स होते हैं, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, तो उन 2 ऑपरेटर्स के बारे में भी बताया है. So we will be going through those 2 operators as well. All right. So students, this is it for today's class. I would be uploading this video in the group, so that if anybody has not attended the class can go through this video and understand. If you face any difficulty in the topics taught today, so you can just watch the video once and you can ask your doubts if you have. We would be clearing those out. All right. So students, thank you so much. See you in the next class.